ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। Welcome to another episode of my talk show, Inspiring Lives by Manu. Inspiring Lives by Manu is an initiative to honor and highlight the heroes of our society who have been an inspiration and have been contributing a lot in making a difference in people's lives. जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो सफल होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नायाब हीरो से। Today we are going to meet a well-known, cheerful, extremely talented powerhouse of entertainment who has created himself as a brand in information and broadcasting industry and has been inspiring millions since more than 2 decades. तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। जॉनथन फिलेमन नितिन ब्रैडी उर्फ खुर्राफाती नितिन। From a samosa seller to India's most popular and the most successful RJ, Khurrafati Nitin is the most awarded RJ of our country. And he's not just RJ, he's an actor, he's a director, he is also a show host, and he's also an angel advisor. From past almost more than 2 decades, he has established himself as a brand. And today, he is the most sought after professional and a household name. नितिन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में इंस्पायरिंग लाइव्स बाय मनु। थैंक यू मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड इसलिए एन ऑनर कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं लोगों को, तो ये मुझे लगता है अनदर फेदर इन द कैप है कि मुझे आपके शो पे आने का मौका मिला। So nice of you. I think it is honor for us to have you with us on this show, because I think this is one of the achievement in my career also, that I am actually talking to you today on this show. Thank you once again. It's the pleasure is entirely mine. Thank you so much, sir. So let's begin this program, because I think our audience would be very much excited to know more about you. So जैसे मैंने आपका ये जो नाम लिया, in fact, you know, when I was actually doing research on your personality, your background and your achievements, I found this name of yours, which is your, I think, original name, okay, Jonathan Nitin Brady, and that's very exciting name. So we would like to know the background of this name. How did it happen, and who gave you this name? Yeah, so my lineage is very varied. So basically, I'm an Anglo-Indian. And my great grandfather was an Irishman. मेरे दादा जो है वो मैसूरू बेंगलुरु के थे. My dad was born in Bangalore. दादी जो है तमिलियन ब्राह्मण थी, आंध्र प्रदेश की. नाना नानी डेरा गाजी खां पाकिस्तान से इंडिया आए थे पार्टीशन के बाद. पार्टीशन के टाइम पे तो पंजाबी थे. मम्मी पंजाब में पैदा हुई, बीवी हिमाचली राजपूत है. हमारे घर के बाहर लिखा हुआ इनक्रेडिबल इंडिया. सारे के सारे प्रांत जो है यहाँ पे बसते हैं. Indeed, so that's what my name is. You're right, Jonathan Philemon Nitin Brady. So Nitin is my middle name. और पहले जो है मैं अपना नाम, जब मैं ऑल इंडिया रेडियो में था तो मैं वहाँ पे अपना नाम जॉनथन बताया करता था ऑन एयर कि मैं हूँ जॉनथन. पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जॉनथन वाज नॉट अ वेरी कॉमन नेम फॉर द मासेस. तो मुझे फैन मेल आती थी ज्वाला सिंह के नाम से, ज्वाला सिंह. मैं कहा ये तो गड़बड़ हो रही है, मैंने नाम बदल दिया उन्होंने. फिर मैंने जब प्राइवेट एफएम ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं अपना मिडिल नेम नितिन यूज करता हूँ. इट वाज मोर कलोकियल, इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड. और वो जब सुनते थे रेडियो पे तो आसानी से अटक जाता था दिमाग में, तो इसीलिए मैंने करना शुरू किया. बट यू आर राइट, सो दैट इज माय नेम एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों है. Nice, very very unique, and in fact, you know, बहुत दमदार नाम है. बहुत लंबा नाम है, दमदार का लंबा नाम है. और ये खुराफाती नितिन कैसे पड़ा नाम आपका? No, so actually what happened was that earlier मतलब मेरा कुछ और टाइटल हुआ करता था रेडियो पे, and I can't take that name. I'm not allowed to use that title anymore. But फिर जब मैंने शिफ्ट किया, I joined this place called Red FM. तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैं अपना टाइटल जो है कुछ रख के सिर्फ नितिन नहीं रहना चाहता, क्योंकि नितिन इज वेरी कॉमन नेम.
अगर आप नितिन जोर की आवाज लगाएंगे तो हो सकता है मेरे मोहल्ले में से 5 लोग मुड़ के देखें हाँ जी, तो बहुत कॉमन नेम है, इट्स वेरी कॉमन इंडियन नेम। तो मुझे लगा कि अगर आइडेंटिटी बनानी है तो कुछ ब्रांड कुछ बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मेरी माँ जो है मुझे बचपन में खुराफाती बोलती थी। उस टाइम आई हैड नो क्लू व्हाट इट मेंट, बट शी वुड समटाइम्स रेफर टू मी, कितना खुराफात मचाता है, कितने खुराफाती है। तो मुझे उस टाइम लगता था मेरी बहुत इज्जत अफजाई हो रही है कि अरे वाह मेरा बच्चा कितना प्यारा है, बहुत ही खुराफाती है। बट because I was the first guy who started playing pranks on radio in India. I started, pranks in India. तो वो खुराफातें होती थी, तो मुझे लगा यार it just goes perfectly well with it, तो मुझे लगा इसी को टाइटल बना लेते हैं। तो मैंने अपना नाम जो रजिस्टर किया, मैंने कहा इसके पहले कि कोई और बोले आप इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते अगले स्टेशन में, मैंने नाम को रजिस्टर किया, मैंने इसके पैन कार्ड बनाया, मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोली, सब कुछ कर डाला, और फिर मैंने ऑन एयर अपने आप को लॉन्च किया एज खुराफाती नितिन। बट ये खुराफाती नाम जो है, जो टाइटल है, मेरी माँ की देन है। Very nice, so nice. I mean, I think now it has become as a brand. I mean, in itself, people know you. I'm glad you feel that way, but thank you. So okay, and I've heard that you are from Chennai, Tamil Nadu. You have originated from Chennai. No. Tamil Nadu. So as I said, my grandfather's from Bangalore, so Karnataka. Acha. That's where we're from. But I have been born and brought up in Delhi. I was born here only. Holy Family Hospital में मेरी माँ एडमिट थी जब मैं पैदा हुआ था। मजे की बात ये है मनु जी की मेरी माँ जिस रूम में एडमिट थी होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला में मेरे पैदा होने के टाइम पे, जब मेरा भाई 7 साल बाद पैदा हुआ तो मेरी माँ बाई चांस उसी रूम में फिर से एडमिट थी। तो सेम रूम नंबर। अच्छा, ग्रेट। That's a coincidence. Yeah. So born and brought up in Delhi. तो मैं खुद तो दिल्ली का ही पला बड़ा हूँ, यही पैदा हुआ हूँ। अच्छा, nice, very nice. So वही तो वो नजर भी आता है, वो दिल्ली वाला जो एक इफेक्ट है ना, जो एक वो आप पे नजर आता है when you are on air, I mean, Delhi so nicely, like you talk about Delhi from the heart, I believe. So this is I think the reason behind it. पता है आपने जाने अनजाने में एक बड़ी प्यारी बात कही, आपने कहा कि वो नजर आता है जबकि रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, but that is the power of radio कि आप जो सुनते हैं वो इतना आपके ऊपर जो है सराबोर हो जाते हैं आप उसमें कि आपको लगता है कि आप वो देख रहे हैं। इसे कहा जाता है थिएटर ऑफ द माइंड कहा जाता है रेडियो को अक्सर, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो थ्रू योर वॉइस, थ्रू ऑडियो इफेक्ट्स, थ्रू म्यूजिक, यू क्रिएटिंग पिक्चर्स ऑन एयर। तो इसलिए आप रेडियो, आज के एक जमाना था जब आप रेडियो सुनते थे, अब आप रेडियो देखते हैं। That's the kind of image that the images that you get on radio. In fact, I mean, when you are on air, when you are talking to people, I'm your very big fan of yours because I have been following you since ages. When you started with one more channel, Red FM, then you switched over to Fever. तो पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, फिर मैं मिर्ची गया, फिर मैं रेड एफएम गया, फिर फीवर गया। अब मैं 3 साल हो गए हैं और मैं 92.7 बिग एफएम पर आता हूँ। Right. Big FM is also my favorite channel, one of I'm sure it is. मेरा खुद का favorite है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ अभी, but because I love the music, we call it timeless music. तो जो गाने हम यहाँ पे चलाते हैं मुझे बहुत पसंद है। Evergreen, retro. So अब जो मैं हर गाना जो मेरे शो पे आता है मैं खुद भी फुल वॉल्यूम सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि खुद नहीं सुन रहा होता कि कोई गाना चल रहा है, बड़े मजे से सारे गाने लगाता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। But one can actually feel you while you are talking now, you as if like you are sitting in front of that person. So it's like so real. I'm so glad. और ये अच्छी बात है आप ये सब कुछ कह रही, मैं रिकॉर्डिंग अपने बॉसेस को दिखाऊंगा, शायद इंक्रीमेंट मिल जाए। Yes, no, I can vouch for it. Yes. So I mean, आपके लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं. I can actually have many episodes with you because you have achieved a lot in your life. But one of your biggest milestone, which I believe is like the drastic transformation which you have done in yourself, in your personality, through I think a weight loss and a fitness regime. We would like to know about that. How did it happen and when did I mean, actually it is just the wrong time to talk about it because lockdown में जो है I've put on weight again. Okay. तो मेरा वजन 5 किलो बढ़ चुका है और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कम वक्त पता है चक्कर क्या होता है कि जब वजन बढ़ता है ना सबसे पहले वो टोन पे आता है for some reason. It targets the stomach first. तो आपका पूरा शरीर आपको लगता है हाथ बात तो वैसी है, शक्ल भी वैसी दिख रही है, और तो जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको लग रहा है नहीं आप तो बिल्कुल पुट ऑन नहीं किया। मैं कहा भाई साहब मैंने कैमरा नीचे नहीं किया ना, अभी नीचे नहीं करूंगा। but I have lost a lot of weight and I think वो क्या हुआ था कि बहुत समय से मेरा वेट काफी पुट ऑन था। एक ना टाइम था मनु जी जब रेडियो के जितने भी रेडियो जॉकीज हैं वो दिखते नहीं थे, सिर्फ रेडियो पे एक आवाज थी। बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया अब इतना आदत पड़ गई है कि लोग आपको देखते हैं। इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट दैट
ऐसा नहीं कि जो लोग ओवरवेट होते हैं वो गुड लुकिंग नहीं होते, ऐसा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज यू बिकम अ लिटिल बिट मोर कॉन्शियस, बिकॉज आपको दिखने लग जाता है, आप खुद को देखते हैं सोशल मीडिया पे कैसे दिख रहे हैं, फिर आप यू स्टार्ट फीलिंग कि मे बी इट्स टाइम टू गेट लिटिल बिट मोर फिटर आल्सो, बिकॉज जब मैं रेडियो पे सबको बातें बताता हूँ कि भाई बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा मूवमेंट करें, अब आप खुद मूवमेंट कर नहीं रहे और दूसरों को आप जो है बड़ी सलाह दे रहे हैं कि भैया आप जाइए, हाँ, तो इसीलिए जो है इट इज दैट इज व्हाई इट बिकेम इम्पोर्टेंट एंड इट हैड स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन माय हेल्थ। तो क्या होता था, जैसे अगर मैं एक फ्लोर भी चढ़ता था ना मनु जी, तो मैं बीच में 3 से 4 ब्रेक लेता था। एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अगर मेरे को फर्स्ट फ्लोर तक जाना है। मुझे याद है मेरे मामा जी का घर जो है, ये कब की बात है, कितने साल पहले? ये अब 3 साल पहले। तो जब मैंने बिग एफएम ज्वाइन किया तो मैं बहुत मोटा हो चुका था, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड लूजिंग वेट धीरे धीरे करके, एंड आई हैड टू टेक सम ड्रास्टिक स्टेप्स बिकॉज बहुत ज्यादा वेट हो गया था। बट इतना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इट हैड बिकम वेरी एम्बैरेसिंग कि मैं एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स भी अगर लेना है तो उसमें 3-4 ब्रेक लेनी पड़ती थी, हाफता था बहुत। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इससे पहले वाला जो मेरा स्टेशन था, वहां पर मुझे मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि देख, वी ऑल लव यू एंड दिल्ली लव्स यू, बट एक चीज जो हमें तेरे को ऐसा फीडबैक देनी वो ये कि अब जब तू बात करता है रेडियो पे, तेरे हाफने की आवाज आ रही है। अच्छा, क्या बात कर रही हूँ? हाँ जी। तो क्या हुआ, the chin is here right now, right? My chin was like this. I had like almost like double नहीं ट्रिपल चिन थी। तो what happens है, आपका जो यहाँ पे है फैट इतना हो जाता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स जो थोड़े प्रेस होते थे, आवाज बदलने लग जाती है, एनर्जी थी नहीं तो हाफने लग जाता था। तो जब मैं बात कर रहा होता था बीच में, आई वुड गैस्प फॉर एयर, मुझे खुद पता नहीं लगता था क्योंकि वो तो मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग they could sense it, they could hear it। फिर उसने मुझे 2 लिंक सुनाए मेरे, उसने कहा सुन। फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा लेकिन ढीठ तो ढीठ होते हैं, मुझे बुरा लगा, पर मैंने कहा ऐसी मेरे को जो करना मैं करूंगा। मैं अपना चालू रहा, बटर चिकन चालू रहे और चिकन टिक्के चालू रहे, छोले भटूरे चालू रहे, वो रुके नहीं। बट देन फाइनली व्हेन आई जॉइन बिग एफएम, तो कुछ समय बाद तब मेरी शादी भी हो गई, तभी मैं ऐसा ही था। तो मेरी बीवी तो मुझे अब बोलती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है क्योंकि मैंने 100 गज के प्लॉट से शादी की थी, अब 25 गज का रह गया है। मेरी प्रॉपर्टी हथिया ली गई है। तो नुकसान हो गया। तो बट देन आई रियलाइज दैट आई थॉट दैट इट वाज हाई टाइम। मुझे ऐसा लगता मनु जी कि एक तो ना हमारे देश में क्या, हमारे पूरे वर्ल्ड में बॉडी शेमिंग बहुत होती है। तो जो मोटा है वो मोटा है, जो पतला है वो तो पतला क्यों है, कोई लंबा है कोई छोटा है, कोई परफेक्ट है तो परफेक्ट क्यों है, भैया थोड़ा वेट बढ़ाने, हर किसी को हर किसी दिक्कत है। तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा जो भी देख रहा है कि आप तब तक वजन ना घटाएं जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि आपको वजन घटाना है, पहली बात। दूसरी बात, you might be a little overweight, but that doesn't mean you're not fit. I have seen very lean, very thin people who are not fit at all. Just because you're thin doesn't mean you're fit, right? तो वजन जो है घटाने की तब आपको जरूरत पड़ जाती है जब आपको लगता है कि आपकी हेल्थ पे बनाई है, तो आपको जरूर करना चाहिए। Exactly, हाँ जी। और मुझे क्योंकि लगा था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था, उन्होंने कहा कि अब अगर तू नहीं घटाता अपना वेट तो यू स्टार्ट डेवलपिंग प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज आई हैड बिकम, देयर इज अ टर्म, एक तो ओबीस होता है, एक होता है morbid obese. So I had hit morbid obesity. Yes, I've seen your pictures also, your previous pictures. So I was 139.7 kgs, 139.7 किलो, और अब मैं हो गया था बीच में 69, but now I'm like 74, 5 किलो वापस आ गए। That's a huge transformation. From a 7XL shirt, I went down to a medium size. So yeah, and small this is I think it's a biggest inspiration for all our viewers, people who are actually not really, because I just feel that मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। देखिए, इंसान जब कुछ गलत कर रहा होता है ना, तो उसको सिर्फ अगर वो सही कर दे, मैं इतने सालों से गलत करता आ रहा था, तो सही कर दिया तो कोई मैंने तीर नहीं मारा, मतलब अपना शरीर मैंने बिगाड़ रखा था, उसको नॉर्मल ट्रैक पे लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। हाँ, अब अगर मैं अपनी बॉडी बना लूं, ऋतिक रोशन की तरह कट आ जाए, तब मैं कहूंगा अचीवमेंट है। अभी तो नॉर्मल लोग हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात इसमें ये है नितिन जी, मैं जो बोलना चाह रही थी कि आपने ये इसलिए नहीं किया वेट लॉस बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू हैव डन इट बिकॉज यू वांट टू रिमेन फिट, हेल्थ इश्यूज ना हो आपको, उससे बचने के लिए आपने, यू वर एक्चुअली, आई मीन एक तरह से कि इंस्पिरेशन थी, आप सेल्फ मोटिवेटेड हुए एंड देन यू डिड इट फॉर योरसेल्फ, मतलब अपने लिए किया आपने कि मुझे कोई हेल्थ इश्यूज। उस मोटिवेटेड में भी देखिए स्टार्ट मोटी से ही होता है, तो पॉइंट आपने बड़े तरीके से मुझे कमेंट मार दिया। पॉइंट इज कि you're absolutely right, वेट। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी बात है मनु जी, कि अब जितने लोग मुझे मिलते हैं ना, जो मुझे 2-3 साल से नहीं मिले हैं, the first reaction is not कि wow you look good, their first reaction is you used to look better पहले।
So when I was, and that's a fact, even my family, everyone, even my wife, everyone around me says the same thing. कि जब मैं, when I was overweight, I used to look better to them. And it's not कि they, it was just that they got used to me looking like वो this. ऐसा होता है ना, किसी किसी पे ओवरवेट सूट करता है, वो आपकी Probably. पर्सनालिटी को सूट करता था. हाँ. तो अभी तो मैं जब बीच में बहुत पतला हो गया था ना, तो पंजाबी हुआ था, तो जितने रिश्तेदार थे, ऐ क्यों है नो, सुखा जै मुंह हो गया था, ऐसे ऐसे करके कमेंट में कहा यार मैं पागल हो गया पतले होने में, ये कह रहे सुखा था मुंह. इनफैक्ट यू नो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहीं पे, जैसे आपने बोला ना, व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग रिसर्च ऑन योर लाइफ, मुझे लगता था कि आप एक पंजाबी हो. आई नेवर न्यू दैट यू आर अ क्रिश्चियन. आई मीन हेलिंग फ्रॉम साउथ इंडिया. अच्छा, योर मॉम इज पंजाबी. हाँ, तो वो इफेक्ट है, वो उसका असर है आपके अंदर, जीन्स हैं. हालांकि मुझे लगता है कि मैं हर प्रांत का हूँ. मैं बंगाली भी बोलता हूँ, मैं भोजपुरी भी बोलता हूँ. एंड मैं सिर्फ मैं कैमरे पे अभी है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है कि डीप डाउन इनसाइड ना आई एम जस्ट एन इंडियन. और ये मतलब मेरे माँ बाप की वजह से है, द वे दे ब्रॉट अस अप, मी एंड माय ब्रदर. तो वो हमारी दोनों की सोच ही ऐसी है कि हम हमेशा कभी अपने आप को ऐसा सोचा नहीं कि हम किस स्टेट से नहीं, वी जस्ट फ्रॉम इंडिया. So that's what's important. And I think इस टाइम पे तो ये पैंडेमिक इतना फैला हुआ है कि it's more important to think of yourself as a global citizen more than even as in India. पूरा वर्ल्ड जो है इससे जूझ रहा है. So I think we need to rise above this और कि कहाँ से कहाँ नहीं. But my point is कि मैम मेरी कुकू क्लॉक बोल पड़ी है, रुकना पड़ेगा. चलिए बंद हो गई. वो बहुत शोर हो जाती है. So yeah. अब मैं क्या पूछ रहे थे आप? मैं तो इनफैक्ट आपने बताया कि मैं पंजाबी का जो इफेक्ट है मेरे अंदर, because you are global Indian moreover, not any particular religion. Exactly. तो वो थोड़े लहजा वैसा इसलिए क्योंकि नानी के घर बहुत रहा हूँ. 2 महीने की जो छुट्टी होती थी समर हॉलिडेज में, लोग कहते थे मैं नैनीताल गया, मैं आ गया. मेरा हर साल कमबख्त एक ही निबंध होता था हिंदी में, मैं छुट्टी में नानी के घर गया. तो लोग कहते थे कहाँ है, मैं कहा लाजपत नगर. कहते हैं अबे तू हर साल तो लाजपत नगर जाता है पीतमपुरा से. और हमारी गर्मी की छुट्टी होती थी, हम 2 महीने की छुट्टी सिर्फ वहीं मनाने के लिए जाते थे. तो हाँ, तो इस वजह से जो है मेरा लहजा वैसा जो है वो काफी पंजाबी है, बिकॉज मैं पंजाबी बहुत बोलता हूँ, तो इसीलिए शायद. इनफैक्ट आप जो भी बोलते हो दिल से बोलते हो. ऐसा लगता है व्हेन आई एम ड्राइविंग ना, मुझे ऐसा लगता है यू आर सिटिंग बिसाइड्स मी एंड टॉकिंग टू मी. इट डज नॉट लुक एट ऑल दैट यू आर एक्चुअली यू नो ऑन एयर एंड ऑन द रेडियो. इट लुक्स लाइक एज इफ सम फ्रेंड इज टॉकिंग टू यू. How sweet. Thank you so much. I'm so glad अगर आपको ऐसा लगता है, because that is the motive. The motive is just to be a friend on air. So thank you for saying that. So I think our viewers would be interested to know more about your journey, your life journey. Like how did you thought about becoming an RJ? When did it started? और अब तक की कैसा रहा आपका ये सफर, जर्नी कैसा? मैं आरजे तो कभी बनना ही नहीं चाहता था, बिकॉज जिस जमाने में मैं आरजे बना, उस जमाने में आरजे को एज अ फुल टाइम करियर लोग सोचते ही नहीं थे. तो मैं हमेशा से एक एक्टर था. थिएटर किया मैंने काफी. मैंने कुछ आई थिंक 47-48 प्लेस किए हैं, और मैंने प्लेस लिखे हैं, डायरेक्ट करे हैं. और मैं मंडी हाउस में जो है श्री राम सेंटर पर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वहां से एक्टिंग कोर्स भी किया. और इनफैक्ट किरोड़ीमल कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ड्रामेटिक्स हुआ, क्योंकि मेरे 12th में तो सिर्फ 67% आए थे, तो कोई एडमिशन कहीं मिलना नहीं था. तो मेरा वहां पे भी ड्रामा के थ्रू ही, ड्रामेबाज में बचपन से ही था, तो मेरा एडमिशन जो वहां भी ड्रामे के थ्रू ही हुआ. प्लेयर्स करके उनकी सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी. सो दैट्स हाउ आई गॉट एडमिटेड देयर. तो मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था. रेडियो कैसे हुआ कि आई वाज वेटिंग फॉर माय कॉलेज रिजल्ट्स, और मुझे 1-2 बारी पहले भी मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज में, उसकी मदर ने बोला था कि बेटा तुम्हें रेडियो पे आना चाहिए. तो मुझे लगा कि मैं आंटी ने ना फोन करता रहता हूँ उसके घर पे, तो आंटी का तरीका है बोलने का कि लुखे मेरी बेटी को फोन करना बंद कर, तंग करना बंद कर. क्योंकि उस जमाने में रेडियो के जो प्रोग्राम करते थे वो आधे घंटे का शो करते थे हफ्ते में. तो मतलब महीने में आपने 2 घंटे काम किया. मैंने कहा आंटी कह रही बेटा तेरे को तो नौकरी भी ऐसी मिलेगी, 2 घंटे काम करेगा बस तू महीने में लुक के. तो मुझे बड़ा बुरा लगा. तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं. फिर मामा जी ने, जब मैं अपने कॉलेज के रिजल्ट्स की वेट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऑल इंडिया रेडियो की एक ऐड आई है, उनको प्रेजेंटर चाहिए. मैं वेला बैठा हुआ था, रिजल्ट की वेट कर रहा था, साथ में थोड़ी बहुत नौकरी कर रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था. तो मैं कहा चलो जाते हैं. तो मैं वहां गया और मुझे पता ही नहीं था रेडियो की क्या करते हैं. मैं तो बस बातें बहुत करता था, गाने बहुत सुनता था. फिर पता लगा इस बात के पैसे भी मिलने शुरू हो चुके हैं आजकल, ऐसा काम भी है. मैं कहा चलो कर ही लेते हैं. But yeah, so that's how it started. So I joined there, and then I used to work in an airline. So that was your inbuilt talent which worked for you, है ना, in the beginning. Probably, but I think theater helped me a lot. Theater helped you a lot. हाँ जी, theater. और मुझे ऐसा लगता है I am a strong believer in this, that no matter what sphere of life you are in, what profession you take up, I think everyone should actually do a bit of theater in their life, because theater teaches you a lot of discipline,
it teaches you Right. teamwork, it teaches you voice modulation. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, कॉन्फिडेंस जो मुझे लगता भी है कि बिल्ड थिएटर होता है आपको उससे। सिखाता है। तो थिएटर हाँ वैसे जी। सबको जी हम्म। सबको करना चाहिए। तो थिएटर करता था, मैं को हमेशा से एक्टर बनना था, मैं विलन बनना चाहता था बॉलीवुड में, पर अब दिल्ली में आपको पता ही है एक्टिंग के कोई इतने ज्यादा स्रोत तो नहीं है है नहीं ज्यादा। कि हाँ। आप यहाँ पे जाके जो बोले कि मुझे एक्टिंग करा दो तो करा दो। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत थिएटर किया, बट देन आई रियलाइज कि यार इस पे पैसा कमा के इस पे जीना तो बड़ा मुश्किल है दिल्ली में। थिएटर फॉर एग्जांपल, थिएटर इन मुंबई पेज बेटर। अगर हम वहाँ पे किसी थिएटर ग्रुप में हैं, आप फिर हाँ भी जी। उसको सर्वाइव कर जाएंगे। पर यहाँ पे जो थिएटर ग्रुप्स में जैसे लोग पैसे वैसे कमाते हैं, हाँ जी। लेट्स फेस इट, इतना नहीं कमाते हैं। मैंने खुद भी बहुत डायरेक्ट करे प्लेस, मैं भी हम्म। जानता हूँ मैंने लोगों को क्या पैसे दिए थिएटर में, तो मैं जानता हूँ कि उस पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। सो Right. इसीलिए जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई जंप्ड ऑन टू इट, बिकॉज एज आई सेड आई वाज ऑलवेज इन लव विद म्यूजिक। बचपन से मैं बहुत म्यूजिक सुनता था, तो अलग अलग जॉनर म्यूजिक के सुनता था। ऑफ कोर्स बॉलीवुड तो सबकी रगों में बसा ही है, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। आप साउथ इंडिया में हो, आई चाहे थिंक ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, चाहे सेंट्रल में हो, चाहे नॉर्थ में, बॉलीवुड तो हर कोई सुनता ही सुनता है। हमारे देश में 3 रिलीजन्स हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ। एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा क्रिकेट और तीसरा बॉलीवुड। ये हाँ, रिलीजन्स क्या तो लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। देखो पीसीआर बन गया है, और पीसीआर पुलिस वैन होती है, ध्यान से रहिएगा, पीसीआर। वेरी नाइस, दैट्स हाँ जी, तो so नाइस। that's how it started, and then radio happened, and then there was no looking at it. I started enjoying it so much that it became my first love instead of being my second love, and it became my passion धीरे धीरे करके, because Okay. I realized that I really loved being on air. Very nice. So, how much? I mean, what is the total span of your career as an RJ till today? If हाँ, in more than case 21 years I guess, because मैं पहले 2 साल AIR में था, फिर 4.5 साल मिर्ची में, 4.5 साल रेड में, 6 साल फीवर में, और यहाँ 3.5 साल तो हो गए। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे कैलकुलेट करने में। 6 और 4.5, 10.5 हमारे पास और बहुत वक्त है। 11, 4, 15 तो 17, तकरीबन 20.5 साल। 20.5 साल. So Yeah. almost more than 20 years. I mean, 20 Yeah. plus years. Great. Yes, so you were right at the beginning of the interview that more than 2 decades, yes. Which is like a very good, in fact, a span of career. And I mean, you have become a institute yourself. You can actually inspire a lot of youngsters who would like to go for this career. जो इस I don't आरजे know. बनना चाहते हैं. But I don't know if I'd want to inspire all of them. I'll tell you why. Because having said that, I've been in this career for a long time, but ऐसा नहीं कि बहुत सारी opportunities है to become an RJ. Because देखिए limited number of stations हैं. अब चक्कर क्या होता है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि रेडियो करना है, तो दिल्ली में रेडियो करना है, कई लोग ना बहुत स्टक अप आते हैं, ऐसे नहीं होता। बिकॉज इतने कम स्टेशन है फॉर एग्जांपल दिल्ली में, एंड दे ऑलरेडी हैव रेडियो जॉकीज, व्हिच मींस दैट अगर आप आ रहे हैं तो दे विल हैव टू चक समवन आउट। नॉट 99% दैट डजंट हैपन, बहुत कम होता है। तो पीपल नीड टू बी लिटिल ओपन कि अच्छा ठीक है, क्या मैं टियर 2 टियर 3 सिटी में जाके पहले शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्योंकि थोड़ा छोटा स्टेशन होता है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ ऑडियंस एंड एवरीथिंग, तो दे कैन टेक अ चांस, वो थोड़ा चांस देते कि नए टैलेंट को वहां पे ट्राई कर लेते पहले, राइट। बिकॉज जो मेट्रोज हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, इन सब जगहों पे रेडियो इज सो डायनामिक दैट यू डोंट हैव टाइम टू गेट समवन ऑन एयर एंड टीच देम, because let's face it, for radio stations time is money. एक सेकंड उनके लिए पैसा है, it's a business, right? And so it is impromptu. It is impromptu. You cannot actually record it and then make it on air. Correct. It's live, and on the side, it's live. And you need to be, and people call up with almost anything in their head on this show. You need to be able to tackle everything. कई बार कोई लोग पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोल देते हैं, कई लोग जो है अपनी पर्सनल लाइफ में, for example, there are people these days who call on a show. There are so many of them who are dealing with depression issues. Now, if you're not experienced enough to handle those calls, तो आप तो किसी के तोते उड़ा देंगे, पता लगा आपने गलत बोल दिया। हाँ भाई, हाँ बहुत अच्छी बात है, तू गम वाले गाने सुन और तू ऐसे डुबकी मार गम में, तो आपने उसको और दुखी कर दिया। So you need to know how to talk to them. तो इसीलिए वो चांस नहीं लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे डायनामिक बहुत है। तो इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप रेडियो में आना भी चाहते हैं, पहली बात तो रेडियो इज नॉट ओनली रेडियो जॉकिंग, रेडियो इज अ बिग 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 इंडस्ट्री। तो उसमें रेडियो जॉकीज भी हैं, उसमें प्रोग्रामिंग के लोग होते हैं, उसमें म्यूजिक मैनेजर्स होते हैं, फिर उसमें प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, देन देयर आर सेल्स होते हैं, क्लाइंट सॉल्यूशंस के पीपल होते हैं, एडमिन के लोग होते हैं। तो एक बार रेडियो स्टेशन में कोई भी नौकरी करके देखिए, गेट इनटू द सिस्टम, एंड देन इफ यू थिंक दैट यू रियली लाइक इट, देन वेंचर आउट इनटू व्हाटएवर यू वांट टू डू। पर अगर आप सोच रहे हो ओवरनाइट आपको एकदम, अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक कि अरे रेडियो पे बोलना ही है, एंड आई एम सेइंग दिस
upfront, क्योंकि हाँ, कई बार मुझे सुनने को मिलता है, अरे बोलना ही तो है, मैं तो बोल लूंगा, तो भी exactly, तो हाँ, बोलते हैं. So, but it's, you know, let's face it, I say it with all humility, but it's a craft. You need to learn it. You need to know how to do it. It's like, you know, me saying कि अरे यार क्या है बॉलीवुड में, मेरे को भी नहीं दे सकते लोग, इतने सारे बैठे हैं, इतने and then सारे नए लोग आते हैं, मुझे नहीं you दे have to put your brain into it. It's not like just, you know, saying for the sake of saying it. सकते. It's a skill set, You Madhu have ji. to be You need to have a, responsible. it's a skill. You need to It's hone a your skill, skills. right? Yeah, if you don't hone them well, then you cannot just land up into radio and say कि आज मैं अप्लाई करता हूँ, कल मैं रेडियो जॉकी हूँ. ऐसे नहीं होता है. It takes time. Exactly. हाँ जी, very true, Yeah. very true, very well said. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, because in every profession whatsoever it is, like, you know, you have to be responsible enough, you are answerable, you have to take the charge and the integrity, that all these, like जैसे आपने बोला कि जो facts and figures हैं, if in case they are actually handling a call from any listener, so they are supposed to be mature enough to handle that, you know, like True. by taking responsibility. That's very nice message for the viewers. और मैंने in fact I wanted to know more about your I think you have been backed by a lot of awards and accolades. आपको बहुत सारे you know मिले हैं accolades. You have been awarded with several you know different brands were there behind it. So can we just know more about those awards and basically what was the achievement behind it? मैम अपने वर्ड्स में बोलना बड़ा weird लगता है. If you want, what I'll do is I'll just walk you till there. I'll just show you my wall. So I'm Okay, yeah, that would be really nice. किसी को दिखाता नहीं, पर खुद बताना कि मैं क्या अवार्ड जीता हूँ sounds very pompous. नहीं, मैं बोलती जाऊंगी साथ में, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा कुछ होमवर्क किया है. आपको, so I'll show. So that's my wall. Wow, beautiful. Very Those nice. are some of the awards. So Okay. you know, this is like the Media Federation Award, India Award. हाँ जी. This is the Gurugram Achiever Award. Okay. Then that's a Promax. Then there is that's a Rapa Award. Okay. ऐसे कुछ हैं, but yeah. There was one more na from New York Festival that I've heard. New York Festival, yeah, that's in my workstation. वो तो लाने के लिए कोविड को खत्म करना पड़ेगा. आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. न्यूयॉर्क फेस्टिवल के नाम मुझे 3 अवार्ड्स मिले हैं. न्यूयॉर्क फेस्टिवल इज सपोज्ड टू बी अ वेरी लाइक बड़ा अच्छा मानते हैं उस अवार्ड को. हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर मी मेरे इंडियन अवार्ड्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेल यू द ट्रुथ. और मैं सिर्फ ऐसे बातें बनाने के लिए कह रहा हूं. मुझे ऑनेस्टली लगता है कि जो मेरे देश से मुझे अवार्ड मिला, मेरी ऑडियंस तो यहीं पे है ना, तो इसके मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट वही है कि मैं अवार्ड्स के लिए कोई काम नहीं करता, बट it's just the way of feeling good कि शायद जो आप कर रहे हैं शायद ठीक कर रहे हो, शायद लोगों को पसंद आ रहा है. Right. Very nice. नितिन जी, एक शब्द है इनफैक्ट सभी की लाइफ में आता है, जिसको हम कहते हैं फेलियर, नाकामी, निराशा. What is failure for you? मैम फेलियर तो मुझे लगता है, फेलियर ना वर्ड बहुत गलत है. I honestly don't believe in failure. बिकॉज मेरे लिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंसान जो लोग सोचते हैं ना कि they've encountered failure are wrong. They've actually encountered an opportunity. I always feel that whenever you feel that you've reached a point where you've seen failure, that is precisely the point God has given you an opportunity to do something else, to move on to the next step. Because what happens is sometimes we get so comfortable in the position that we are in. कंप्लेसेंसी तो अलग बात है. एक क्या होता है कि आपकी कंफर्ट जोन भी बन जाता है. आपको लगता है कि यार अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सो आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, you somehow just forget it, and you don't take any risks anymore. A lot of these corporates talk about informed risk taking. वो क्यों अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको क्यों बोलते हैं रिस्क टेकिंग के लिए? इसलिए encourage करते हैं बिकॉज इवन एज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो जाए एक पोजीशन में, तो आप अपनी कंपनी के लिए भी कुछ बेहतर और भी कर पाएंगे. जैसे चल रहा है चलता रहेगा, पर ग्राफ को अगर ऐसे ही चलाना है तो दिक्कत है. तो मुझे लगता है कि फेलियर जब भी होता है, वो जब ग्राफ हल्का सा ड्रॉप होता है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू राइज अगेन. जब आप गिरेंगे नहीं तो आप ऊंचे कैसे उठेंगे, राइट? एग्जैक्टली. तो पर जिंदगी में हाँ, देयर हैव बीन टाइम्स दैट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ. इनफैक्ट आपने जो शुरुआत में बात की थी समोसा बेचने की, दैट इज समथिंग वेरी व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज़ आई थिंक आई चेंज्ड एज अ पर्सन आफ्टर दैट एपिसोड. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट this is around 11 years after I had been a radio jockey. Okay. मैं 9 साल पहले की बात है ये, 9 साढ़े 9 साल पहले. तो मेरे को 11 साल हो चुके थे रेडियो करते हुए. बट मेरा एक ऐसा टाइम आया जब मैं जिस स्टेशन के साथ काम कर रहा था
उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. Okay. And I didn't want to renew it because I wanted to move on. Okay. पर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया. मुझे लगा call it complacency, call it being stupid, call it being overconfident, I don't know. पर मुझे लगा कि यार 11 साल रेडियो में रहा हूँ, अब मैं अगर नहीं सुनाई दूंगा तो फटाफट से बाकी स्टेशन आके पूछेंगे कि भैया कहाँ हो, आओ हमारे साथ काम करो. पर ऐसा हुआ नहीं. So it was a long gap of almost like 6 months जहाँ मैं I was without a job. एंड जितनी भी मेरी सेविंग्स थी मैंने खत्म कर दी, अपने माँ बाप की सेविंग्स खत्म कर दी. जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ इसको प्रॉपर्टी डीलर को दिखाने की नौबत आ चुकी थी. एंड वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फाइनेंशियल फेज. एंड दैट इज द टाइम दैट एक्चुअली टुक अप. मैंने एक छोटा सा खोखा किराए पे लिया गुरुग्राम में ही. तब वो गुड़गांव होता था, अब गुरुग्राम हो चुका है. पर एक खोखा लिया और मैं मेरा भाई जो है वहाँ पे समोसे तल के बेचते थे. अच्छा. तो या मैं खुद बेचता था. मतलब ऐसे नहीं कि हमने कोई जॉइंट सेटअप किया था फॉर a lot of staff. नहीं, मैं खुद समोसे तल के बेचता था. Okay. और and this was 9 years back. I mean in the midst of your career, midst of your career. Absolutely. Absolutely. तो वो हुआ. एंड उस दौरान जो है वो कहते हैं ना कि आपको पता लग जाता है आपके अपने कौन है, कौन दोस्त है, कौन नहीं. वो सब कुछ पता लगा. तो आई थिंक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो फेलियर नहीं था, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी. अपॉर्चुनिटी इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप इंग्लिश का सफर करते हैं ना तो आपको उस दौरान हिंदी का सफर करने का मौका मिलता है अपने अंदर, अपने भीतर. yes. तो मैं इंग्लिश का सफर तो कर रहा था, पर अपने अंदर भीतर जो है मैं हिंदी का सफर कर रहा था. और मुझे अपने अंदर सफर करके इतना ये महसूस हुआ कि जो भी मैं करता आया था वो बुरा नहीं था. एंटरटेनमेंट थी, रेडियो था, मजेदार था. तो मुझे ऐसा लगा कि अब जब भी मैं रेडियो करूंगा देन आई वुड वांट टू गेट बैक ऑन रेडियो. तो मैं चाहूंगा कि मैं कुछ वापस दूं. आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, व्हिच इज व्हाई व्हेन आई फाइनली जॉइन्ड बैक रेडियो I started doing, which was never done on radio before, I started doing CSR initiatives, corporate social responsibility initiatives. And at that time, people thought it would be very boring. They thought it wouldn't work on radio. But I say it with a lot of humility that I started doing CSR on radio in India. कोई करता नहीं था उस वक्त, और अब बहुत सारे stations ऐसा करते हैं. And I'm happy that they do it. I think you pioneered it. You only started it. It doesn't really matter कि किसने start किया, but the point is कि अच्छी बात है कि सब कर रहे हैं. Because that's the need of the hour. The need of the hour is that all of us need to stand together for everything that is happening. Exactly. In fact, हाल ही में अभी इस पैंडेमिक के दौरान मैंने जो मेरा लेटेस्ट CSR इनिशिएटिव था, it was called Hands for Humanity. इसमें मैंने दिल्ली के RWS के साथ मिलकर, मनु जी will not believe it, मैंने ड्राई राशन इकट्ठा करके बांटा है. आप नंबर सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे. मैंने 9.5 टन राशन बांटा है. 9.5 टन. Oh my God. Tons of ration. That's amazing. That is what मैंने पैंडेमिक के दौरान जो है बांटा है. And अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इसको करूंगा, फिर राशन इकट्ठा करूंगा. Beautiful. The idea is just this. I just think that it's high time that all of us, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे काम करने के मौके ना जिंदगी में बहुत कम मिलते, तो जब मिलते हैं मौके तो कर लेने चाहिए. So that's the only idea. So yeah, so that was the phase that I went through. But again, as I said, it was not a failure. It was an opportunity for me to, as I said, I learned something new. CSR during this phase, huh? Yeah. Very nice. That's so nice of you. I mean, it's like it's a beautiful message you are giving to everyone. Like because failure is an opportunity to grow, to multifold, to learn something new, and to do something for others, for other people. That's really beautiful of you. So once again, I would like to tell everyone that you are watching Inspiring Lives by Manu, and we have with us today our special guest खुर्राफाती नितिन. लेकिन मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता. नितिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी. हाँ जी, थोड़ी सी बोल रही हैं. मैं ज्यादा अच्छा बोल रही हूँ. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार आप अपने स्टाइल में, जैसे आप बोलते हैं रेडियो में, वो बोलिए. आपके 2 तकिया कलाम है जो मुझे अच्छे से याद है. एक तो आप अपना नाम बहुत बढ़िया बोलते हैं, और एक वो जो आप बोलते हैं, हाय मेरी जान. ये दो चीजें आपसे सुनना चाहेंगे हम. जरूर जरूर. आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग लाइव्स by Manu, with Manu. Yes. With Manu. I'm Manu. No, by with Manu. Or by Manu? By Manu. दोबारा करते हैं. तो आप देख रहे हैं इंस्पायरिंग लाइव्स बाय मनु, और मैं हूँ खुर्राफाती नितिन. चिपक के बैठो मेरी जान, बवाल मचाएंगे बवाल. Yes, beautiful. That was awesome. So I think before we can leave, I would like you to give a special message to all our listeners, all our viewers, and कि आपकी तरफ से एक message उनको जाना चाहिए कि like as a successful person yourself,
you have established yourself as a brand, and people look upon you as their idol, whosoever would like to come into this broadcasting industry, information and broadcasting industry, या फिर वो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो एक राह की वेट कर रहे हैं, एक मोटिवेशन की, एक इंस्पिरेशन की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या है? देखिए, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। एक कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि व्हाट शुड वी डू ताकि हम आपकी तरह रेडियो जॉकी बन पाए। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड दीस यंगस्टर्स हु कम टू मी दैट दैट पहली बात तो ना, स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक मी। अगर आप किसी की तरह बनना चाहेंगे जिंदगी में तो आप हमेशा फेलियर ही पाएंगे, क्योंकि वो इंसान बन चुका है। हाँ आप तो बनेंगे नहीं, आप उससे बेहतर बन सकते हैं। अगर वैसा नहीं बनना, बेहतर बन के दिखिए। सो पहली बात वो। दूसरी बात, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट लूजिंग फोकस, क्योंकि आपको सक्सेस जो है वो दिखता नहीं है। सक्सेस दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिलेगा नहीं। सो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर पेशेंट, स्पेशली व्हेन यू एंटरिंग इंडस्ट्री लाइक रेडियो। ऐसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रेडियो एज एन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि उसमें लगातार नौकरियां हो रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार रोज रेडियो जॉकीज हायर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी क्लोज्ड इंडस्ट्री इन दैट सेंस, बिकॉज इतनी हायरिंग बहुत ज्यादा होती नहीं है, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो इफ यू आर एंटरिंग द इंडस्ट्री देन बी अ लिटिल पेशेंट एंड जस्ट फील दैट जस्ट थिंक दैट हाँ एक दिन होगा। वो जैसे एक बहुत ही कमाल के शख्स हैं गली बॉय साहब, उन्होंने कहा था अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम आएगा, यही सोचिए एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिंदगी में मैंने तो एक बात सीखी है जो मुझे लगता है सबको अपने पल्लू से बांध के रखनी चाहिए, वो ये कि आपकी जिंदगी में दोस्त आएंगे, दोस्त जाएंगे। प्लीज डोंट माइंड इट, आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वेरी क्लोज टू योर फ्रेंड्स, बट दोस्त आएंगे, दोस्त जाएंगे, रिश्तेदार आएंगे, रिश्ते आएंगे, बट द टू पीपल हु विल लव यू अनकंडीशनली और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे वो आपके माँ बाप है। तो अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलते हैं, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे छोड़ पाए, आप हमेशा आगे ही जाएंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ट्रू, so sweet of you, and I think you have actually touched lot of chords today, because people will definitely admire your advice. और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी आपसे, अपने लिए भी और सबके लिए, कि कोई ऐसे 3 कमांडमेंट्स बताइए। आपने बताया, आपकी एडवाइस सबने सुनी, लेकिन 3 ऐसी कौन सी चीजें हर इंसान में होनी चाहिए सक्सेस के लिए, या फिर एक जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए? 3 चीजें कौन सी है? मुझे लगता है पहली चीज जो है वो यही, मैं दोबारा बोलूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। दैट इज प्राइम ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा, आई एम अ वेरी रिलीजियस पर्सन, तो इट डजंट मैटर कि आप कौन से धर्म में विश्वास रखते हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है या बुद्धिस्ट है, इट डजंट मैटर। बट अगर आपके कोई सुपर, देयर इज अ सुपर बीइंग, कोई ऐसे भगवान हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो उनमें आपकी जो आस्था है उसे बरकरार बनाए रखें, बिकॉज दैट इज व्हाट विल कीप यू गोइंग। तीसरा, द वन पर्सन दैट यू नीड द एडवाइस फ्रॉम मोस्ट इज द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिरर। तो कई बार क्या होता है ना, आप अपने आसपास के लोगों से इतनी बातें पूछते हैं, इतनी एडवाइस लेते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं, आपके जो जिंदगी में चाहते हैं, वो आपकी चाहत नहीं रहती है, किसी और की चाहत बन चुकी होती है। अगर आप लगातार दूसरों से पूछते रहेंगे कि आपने गोल कैसे अचीव करना है, फिर तो वो तो उसका गोल हो गया ना, आपका गोल थोड़ी रहा। तो अपने आप में बिलीव रखिए एंड बिलीव दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। वो बड़ी प्यारी कहावत है ना, शाहरुख खान ने भी कही थी कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आप उसको मिलाने में क्या साजिश में लग जाती है, कोशिश में लग जाती है। अब इसको सुन के आप कायनात नाम की लड़की मत ढूंढिएगा कि वो आपको मिला। पर पॉइंट है कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज you are that one person who's going to give you all the advice that you need to get to the top. So just listen to yourself. Beautiful, very nice. So nice of you, Nitin ji, and it was like a dream come true for me personally, that speaking to you today and knowing so much more about you, and getting inspired myself, and but that's a big thing, Manu ji. If आप इतने लोगों को इंस्पायर करती हैं, आपके खुद इतने टॉक्स होते हैं, आप खुद इतनी अच्छी बातें करती हैं, फिलोसॉफिकल बातें करें, अगर आप कह रही हैं कि मैंने आपको इंस्पायर किया, तो मुझे लगता है that's another feather in my cap. तो मैं अभी जाके पंख लगा लूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। This is coming straight from heart, Nitin ji. This is coming straight from heart, and genuinely I'm telling you that I'm a big fan of yours. And not because you are an RJ, a popular RJ, because you are a beautiful human being, which I have seen myself. Thank you. Thank you so much, ma'am. और शुक्रिया। जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगा, पीछे कुशन बड़ा सुंदर है। अच्छा, कौन सा, ये वाला? बड़ा सुंदर है जी कुशन।
Thank you so much. This is my choice. Yeah, thank you so much. और आपके पूरे क्रू को, कैमरामैन जो भी आपके बेटे हैं, जो भी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कीजिएगा. Thank you so much. And once again, I would like to thank you from behalf of my team, Ask Manu team, and we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much. And जो भी देख रहे हैं, don't forget to log on askmanu.com because यहाँ पर आपको जिंदगी में इंस्पायर होने के लिए बहुत कुछ मिलेगा. askmanu.net. It is .net. .com पे मत जाइएगा, वो किसी और का है. askmanu.net पे जाइए and I'm sure you'll find a lot of stuff to get inspired. And I look forward to meet you, Nitin ji, at your studio because अभी तो lockdown चल रहा है, तो both of us are actually, talking to each other from our respective home. But I think वो मेरा एक सपना है, वो मुझे आपके साथ एक बार स्टूडियो सेटअप में बैठना है. And नहीं, मेरा सपना है कि मनु जी आएंगे और मेरे स्टूडियो में बैठेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे. Thank you so much and thank you मनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया. God bless. Bye bye. Thank you. Bye bye. If you know somebody who has been an inspiration and contributing a lot in making a difference in people's lives, and if you think they truly deserve to be honored and highlighted in my talk show, please write to us on askmanu2k@gmail.com. The email ID is also mentioned on the screen. You can also follow us for more updates on Facebook and Instagram as well. To watch all the episodes of this talk show, please subscribe to my YouTube channel, Ask Manu. Your life is a message to others. Make sure it's inspiring. Signing off. See you all in my next episode.